الله تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على حبيبه الأعلى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذريه وآله أبد الدهور وكرم وصلى الله تعالى عليه وسلم. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ مرکز اہل سنت شاہین نگر حیدرآباد میں جو مناظرہ 26 تاریخ کو طے پایا تھا، سنی حنفی بریلوی حضرات اور جماعت اہل حدیث کے مابین یہ مناظرہ ہونا طے پایا تھا، اس سلسلے میں ساری تیاریاں ہماری جانب سے کی گئی تھیں، اور جن 10 ناموں کا ذکر کیا گیا تھا، الحمدللہ وہ سارے افراد یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے متکلم مناظر غازی اہل سنت حضرت العلام مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ ممبئی مہاراشٹر سے تشریف لائے، اور معین مناظر حضرت العلام مفتی جابر رضا صاحب قبلہ لاتور مہاراشٹر سے تشریف لائے، اور معاونین یہاں پر موجود ہیں، اور ہم نے اپنے طور پر ساری تیاریاں مکمل کر لی، لیکن جو مخالف مناظر نے، جو جماعت اہل حدیث سے جن کا تعلق ہے، جن کا نام شیخ فصیح الدین حیدرآبادی ہے، انہوں نے 23 تاریخ کو ایک ویڈیو جاری کیا اور اس میں مطالبہ کیا کہ آپ پولیس پروٹیکشن اور پولیس پرمیشن جب حاصل کریں گے تبھی یہ مناظرہ ہونا طے پایا ہے، اور ہمارے لڑکے مسلسل پولیس پرمیشن کے لیے کارروائی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسروں سے بھی رابطہ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ آپ حضرات انڈور کلوز ڈور میں آپ مناظرہ کر رہے ہو، ڈیبیٹ کر رہے ہو، کنورزیشن کرنے والے ہو، تو اس کے لیے آپ کو پولیس پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمارے ذمہ داروں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ بتایا کہ کچھ لوگ جمع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بندوبست دیجیے۔ بہرحال آخر وقت تک ہم کو یہ جواب دیتے رہے کہ بندوبست اور کانسٹیبلز وغیرہ کی تعیناتی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کمشنر آف پولیس سے بات کرنی ہوگی، اور اس کے بعد میں ہی یہ سارے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر آخر وقت میں آج کا دن 26 تاریخ کو 11 بجے ہمارے لڑکے جو اپائنٹمنٹ دیا گیا تھا پولیس اسٹیشن سے، وقت کی پابندی کے ساتھ وہ پی ایس پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد انہیں اب
یہ بتایا گیا کہ اوپر سے بہت زیادہ پریشر ہے اور کنٹینیوسلی فون کالز آ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مناظرہ کسی صورت میں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر فتنے فساد کا اندیشہ ہے۔ یہ کمپلین کرنے والے لوگ اپنے فون کالز پر اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے۔ بس ایک طرح کے بلینک کالز جسے کہہ سکتے ہیں آپ، وہ حرکت ہو رہی ہے، اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ فریق مخالف کے ہی چاہنے ماننے والے لوگوں نے اس میں زیادہ بڑا رول ادا کیا ہے، اور اس مناظرے کو یہاں پر نہ ہو اس طرح کے کمپلینٹس وغیرہ یا پھر اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی اور اس مناظرے کو کینسل کرنے کی کوشش کی۔ عزیزان گرامی وقار، اس بات سے اچھی طرح سے آگاہ اور واقف ہے کہ سارے جو فون کالز اور ویڈیو جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، اس میں بڑے کھلے الفاظ میں مناظرے کا چیلنج دیا گیا اور اس کو قبول کیا گیا، پھر ساری باتیں آگے کی طے پائیں، اور پھر لاسٹ مومنٹ میں اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کرتے ہوئے فریق مخالف نے پولیس پرمیشن اور پولیس پروٹیکشن کی ڈیمانڈ رکھی، جس کو حاصل نہ کیا جا سکا، اور اسی وجہ سے آج یہ مناظرہ مرکز اہل سنت شاہین نگر حیدرآباد میں منعقد نہیں ہو رہا ہے۔ اور فریق مخالف نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اب میں اپنے طور پر پولیس پرمیشن اور پولیس پروٹیکشن حاصل کرنے کا کام کروں گا، اور اس کے بعد میں وہ جگہ بتاؤں گا جہاں پر اگلی ڈیٹ میں مناظرہ طے ہونا ہے، تو پھر اس طرح سے وہ مناظرہ وہاں پر منعقد ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، اور مناظرہ کو لے کر ہم نے تو اپنی پوری تیاری کر لی تھی، اور بار بار فریق مناظر کو ہم نے یہ یقین دلایا کہ ہم پیسفل انوائرمنٹ میں جیسا آپ چاہتے ہو بالکل اسی انداز میں ہم مناظرہ منعقد کریں گے، اور ہم نے پبلک سے اپیل بھی کی تھی کہ کوئی بھی مرکز پر نہ پہنچے، اور صرف 10 لوگوں کو ہی مناظرہ گاہ میں اور مدرسے اور مرکز کے پریمیسز میں رہنے کی اجازت رہے گی۔ تو ہم نے اس کو پورا کیا، اور انشاءاللہ آپ اس حقیقت کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے جانیں گے کہ یہاں پر الحمدللہ کوئی بھیڑ نہیں، کوئی پبلک نہیں، کسی طرح کی کوئی ہنگامہ آرائی نہیں، سب معاملہ الحمدللہ پیسفل ہی چل رہا تھا۔ پتہ نہیں کس بات سے وہ خوفزدہ تھے، اور ہمارا بار بار یقین دلانا بھی وہ ناکام رہا، اور وہ آنے کو تیار نہ رہے۔ میں گفتگو کو لمبا نہ کروں، اور میں خواہش کروں گا آج کے ہمارے مناظرہ کے مہم مناظر جو الحمدللہ لاتور مہاراشٹرا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی جابر رضا صاحب قبلہ، میں ان سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ اس مناظرے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ وحزبکہ وابنکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ خوبصورت سما اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، کتابیں سجی ہیں اور مناظرہ گاہ مکمل تیار ہے، اور وعدے کے مطابق جملہ ذمہ داران جو 10 کی تعداد میں
طے کیے گئے تھے سبھی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ حاضر ہیں. بالخصوص شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت علامہ محمد اویس رضا صاحب عرف سہیل میاں، وہ اس محفل کی صدارت سنبھالے ہوئے ہیں اور خصوصی آمد جیسے کہ اعلان کے مطابق بارہا آپ لوگوں نے سنا، ممبئی کے سرزمین سے غازی اہل سنت، زیغن حنفیت، قاطع غیر مقلدیت حضرت علامہ صوفی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی جلوہ فروز ہیں، اور دیگر مفتیان کرام، ذمہ داران، جیسے جیسے دعوت دی گئی سبھی لوگ حاضر ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے جس محفل کو سجانے کے لیے کافی عرق سے کام لیا گیا، مہنگے ٹکٹ اور انتظامات کی حد تک مکمل تیاریاں، ہر ایک کی اپنی قربانیاں، سبھی اس میں شامل ہے، لیکن محفل فی الحال سونی ہے. اس کی بنیادی وجہ 23 تاریخ سے پہلے تک جیسے کہ آپ نے سنا، صرف یہ بات سوشل میڈیا پہ وائرل چل رہی تھی کہ مناظرہ ہوگا، دونوں فریق بیٹھیں گے، لیکن اس کے بعد اس بات پہ زور دیا گیا کہ پولیس کی پرمیشن، پروٹیکشن یہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو مخالف مناظر ہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک اسے کہا گیا کہ اگر تجھے منظور نہیں ہے تو جگہ تبدیل کر لیتے ہیں عین وقت پر، اور پھر ہم اپنی کارروائی آج بہرحال پوری کرتے ہیں، جہاں پر پبلک کے آنے یا پریشانیوں کا سامنا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں. یہ بات تو ایسی تھی جسے رد کیا نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ اس مناظرے میں آنا نہیں ہے، اس نے صاف اس کا بھی انکار کر دیا. حد تو یہاں ہو گئی کہ حضرت قبلہ صوفی صاحب قبلہ نے یہاں تک کہا کہ اگر 10 لوگوں کو بھی آنا تیرے لیے یا تیرے پاس آنا مشکل پڑ رہا ہے تو اکیلا میں ہی جہاں تو بتائے وہاں حاضر ہوتا ہوں. اتنی ہمت، اتنا حوصلہ دکھانے کے بعد بھی وہ اپنی بزدلی پر قائم رہا اور پولیس کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچاتا رہا، اور وقت سے پہلے ہی اس نے ویڈیو وائرل کر دی، ہم تیار ہیں. حالانکہ تیاری کیسی ہے، کہاں ہے، وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. لفظوں میں جمع خرچ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب اس کا نہیں کہنا یہ صاف اس بات پر غماز ہے کہ وہ صرف اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. اس میں ہمت ہی نہیں کہ کسی اہل سنت کے عام عالم سے بھی گفتگو کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکے. یہاں تو چوٹی کے علماء اکرام موجود ہیں سربراہی کے لیے، بات کرنے کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، تو وہ کب ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنے کے لیے آئے اور مناظرہ گاہ میں آ کر ذلت اٹھائے. مزید مکمل تفصیل میرے بعد حضرت علامہ صوفی محمد کلیم حنفی رضوی دامت برکاتہم آپ کو پیش کریں گے. آپ بغور سنیں اور سچائی کو جانیں. اللہ کریم اہل حق کو ہمیشہ سر بلند ہی رکھے اور باطل کو رسوا ہی رکھے. آمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. دوستان محترم، صدر مناظرہ شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت اللہ مولانا اویس رضا صاحب قبلہ المعروف سہیل میاں دامت برکاتہم اور ہمارے معین مناظر مفتی مراٹھواڑہ حضرت اللہ مفتی جابر رضا مصباحی صاحب لاتور نے اس مناظرے کے حوالے سے ضروری باتیں ارشاد فرما دیں. سوشل میڈیا پر لوگ 1-1.5 ماہ سے منتظر تھے کہ یہ دن آئے، وہ وقت آئے اور ہم ماتھے کی آنکھوں سے اہل حق اور اہل باطل کے بیچ جو گفتگو ہوں گی اسے سنیں.
और इसके सिलसिले में जैसा कि मुफ्ती जाबिर साहब ने इरशाद फरमाया, हमारी जानिब से भरपूर कोशिश हुई, कोई कोताही नहीं बरती गई। और आप देख रहे हैं कि जो फरीक़ मुखालिफ है फसीहुद्दीन गैर मुक़ल्लिद, वो साहब बार बार लंबी लंबी ऑडियो बशक्ले वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और लोगों को सुनने पर मजबूर करते हैं। लोग सोचते हैं शायद कोई नई बात होगी, लेकिन हर बार उनका वही रोना होता है। हजरात मोहतरम, आज जिस जगह हम बैठे हैं ये हुजूर शहबाज दक्कन अलैहि रहमत व रिजवान का लगाया हुआ बाग है, दारुल उलूम फैज़ रज़ा, और हजरत का मज़ार मुबारक भी यही है। और ये मरकज़ अहले सुन्नत की हैसियत से इसका तारुफ हैदराबाद और पूरे तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। जब ये मुनाजरे की बात आई तो मरकज़ अहले सुन्नत ने बखुशी इस काम के लिए अपने आप को पेश किया कि हम आपको जगह भी देंगे, इंतजामात भी करेंगे। और ये बड़ी सआदत की बात है कि पैगाम हक़ मरकज़ अहले सुन्नत से अवाम अहले सुन्नत तक आलम इस्लाम में पहुँचे। आप जानते हैं हैदराबाद में गैर मुक़ल्लिदीन कोई काबिल ज़िक्र तादाद में नहीं है, गिनती के चंद है। लेकिन अशरार का ये टोला जहां भी होता है, इनकी खबीस फितरत ये है कि ये अपने पाजामे में न समाकर अइम्मा मुज्तहिदीन और किबार औलिया के ऊपर भौंकते हैं। मैं 18 अक्टूबर को हैदराबाद की सरजमीन पर मुशीराबाद में तकरीर की गरज से आया था और 17 को मैं था उदयपुर में। तो मुझे बजरिए फ़ोन ये इत्तला मिली कि यहाँ के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का ये कह रहा है कि अगर गौसे आजम भी मेरे सामने आए तो हैबत के मारे माज़अल्लाह पेशाब कर देंगे। अब जाहिर सी बात है गैरत ईमानी जाग उठेगी और इस तरह की बातें सुनने के बाद कोई भी बंदे मोमिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मैंने फौरी वहां से एक 2 मिनट का ऑडियो अपने व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में डाला था, जो आज भी उस चैनल में मौजूद है कि मैं कल हैदराबाद आ रहा हूं। तो जिस भी गैर मुक़ल्लिद में दम हो, हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में वो रहता हो, सामने आए और मुझसे इस मसले में तफसीली बात कर ले। या इसके बाद मैं इन जगहों पर जा रहा हूं 21 तारीख तक, वहां आकर बात कर ले। मैं हैदराबाद आया, तकरीर हुई, तकरीर के बाद मैं लौट गया। 20 अक्टूबर को फसीहुद्दीन साहब ने मुझे चैलेंज मुनाजरा दिया। अब अपने चैलेंज मुनाजरा को वो मेरी तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि कलीम हनफी ने चैलेंज मुनाजरा दिया, जबकि उन्होंने जो शराइत पेश की है वो अवाम तक नहीं पहुंची है। उनका ये शराइतनामा हमारे पास पहुंचा है, इसे आप हजरात देखें। इसमें उन्होंने खुद इकरार किया है। ये ना, इसको दिखाना है। आप देखें ये शराइतनामा जो मेरे हाथ में है, ये फसीहुद्दीन गैर मुक़ल्लिद की जानिब से लिखा गया और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों तक ये पहुंचा। इसमें ये खुद इकरार कर रहा है कि 17 अक्टूबर 2024 बमुताबिक 13 रबीउल आखिर को कलीम हनफी रजवी की जानिब से चैलेंज वाला 2 मिनट का एक ऑडियो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 18 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद नज़द मस्जिद बिलाल बगर्ज़ खिताब आने वाला हूं। लिहाजा जितने गैर मुक़ल्लिदीन हैं, उनके उलमा हैं, कमेटी के हैं, कमेटी वाले हैं, जमीयत के अफराद हैं, या पूरे तेलंगाना या पूरे इंडिया में, वो बिल्कुल आ सकते हैं। आए, जलसे के अंदर तकरीर सुने और तकरीर के बाद खुला चैलेंज मुनाजरा है, वो मुझसे मजहब हनफी की हक्कानियत के हवाले से मुनाजरा कर सकते हैं। इसमें ये खुद उस बात को मेंशन कर रहा है कि मेरा ये चैलेंज 18 अक्टूबर के लिए था, यानी इसमें तखसीस थी, तामीम नहीं थी। फिर दूसरी बात, जब तुमने मेरा चैलेंज कबूल किया तो मेरे दावे और मेरे उन्वान के साथ करना चाहिए, ना ये कि चैलेंज मेरा हो और उसमें आप पेवंद लगा के उन्वान अपना दें। तो जब मैंने कहा मजहब हनफी की हक्कानियत के हवाले से मुनाजरा कर सकते हैं, तो 20 अक्टूबर को ये साहब ने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की यूट्यूब पे, जिसमें ये कह रहे हैं कि फुरुआत का नंबर 2 है, फर्स्ट अकाइद है। तो अकाइद में मैं आपको दावत देता हूं कि आप हैदराबाद आएं। आप 20 अक्टूबर का इनका वीडियो देख लें, बल्कि उसकी एक क्लिप भी आप सुन लें कि ये साहब, ये 20 अक्टूबर वाला इनका क्लिप है।
बोलने जा रहा हूं, आप मेरी बात का जवाब देंगे आपके वीडियो से कि मेरी दावत आपने कबूल किया है, ऐसा कहेंगे और डिबेट के लिए आप आएंगे हैदराबाद। पुलिस परमिशन नहीं मिला था 18 अक्टूबर। सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक है डिबेट के लिए वो अकीदे की टॉपिक है। आपने 17 अक्टूबर 2024 को आपके 2 मिनट के वीडियो में बोले थे कि हनफी मजहब की हक्कानियत, इस उन्वान पर आप डिबेट करना चाहते हैं। फुरुआत का नंबर 2 है, फर्स्ट अकीदे का है। अकीदे में आप लोग कुरान और हदीस की मुखालिफत करते हैं, खोल खोल कर बताऊंगा इंशाअल्लाह। कहां कहां पर अल्लाह की गुस्ताखी करते हैं आप रज़वी हनफी लोग, कहां कहां पर प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, कहां कहां पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम की गुस्ताखी करते हैं आप हनफी रज़वी लोग, बरेलवी लोग। मैं कुरान और हदीस खोल खोल कर आपको बताऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे मैं सच्ची तौबा करवा सकूं और आप हनफियत, रज़वियत, बरेलवियत से, सूफियत से, कादरियत से, ये शिर्क, बिदात, खुराफात के जितने सिलसिले हैं उससे सच्ची तौबा करके आप खुद जमात हक्का, जमात अहले हदीस के मुसलमान बन जाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मैं कोशिश करूंगा। हजरात मोहतरम, आपने देखा कि मैंने जब 17 को ऑडियो डाला तो वो खास 18 के लिए था। मैं हैदराबाद से गया, वो चैलेंज खत्म हो गया और उसमें इनका नाम भी नहीं था। वो मुतलक एक बात थी कि जो भी आना चाहे वहां आए जलसागाह में और बात कर ले। 20 को जब इन्होंने 20 अक्टूबर को ये वीडियो डाला तो इसमें मुझे ये हैदराबाद आने के लिए कह रहे हैं और बाकायदा ये कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर बात होगी कि आप हनफी, बरेलवी, शिर्क व बिदात में मुब्तला हैं और आप हनफियत से, कादरियत से, बरेलवियत से तौबा करेंगे और मैं कुरान व हदीस खोल खोल कर बताऊंगा। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी इतना जरी होकर बात कर रहा हो और मुनाजरे पर इतना उतारू हो कि मुझे अभी मुनाजरा करना हो, तो उसके चैलेंज को कैसे ना एक्सेप्ट किया जाए। मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब जब इसने देखा कि चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो फिर लंबे लंबे ऑडियो ये डालता रहा और मैं भी उसका जवाब देता रहा मुख्तसर। बाद में इसने देखा कि ये हैदराबाद मुनाजरे के लिए आने वाले हैं तो इसने एक कमीगी ये की कि ऑनलाइन मेरे ऊपर जो है मुझ पर FIR की ऑनलाइन, जिसकी कॉपी मैं यहां लेकर आया हूं कि और कॉपी उस FIR में ये कहा गया पुलिस वालों से कि किसी तरह आप जो है ये रुकवाइए मुनाजरा और उनसे कहिए कि वो अपने वीडियोस वगैरह डिलीट करें। ये है, आप ये कॉपी देख सकते हैं, इसमें वो नंबर भी है उस शख्स का जिसने कंप्लेन की है। इसके अंदर उसका नंबर भी है और पीछे के सफ़े पर वो तफसील है इंग्लिश में जिसमें ये कहा गया है मुंबई पुलिस से मेरे इलाके की कि कलीम हनफी साहब से कहिए कि अपना कबूले चैलेंज का लेटर डिलीट करें और अपनी वीडियोस जो शेख फसीहुद्दीन के हवाले से है वो सब डिलीट करें। तो इस चीज को देखते हुए मैंने कहा कि देखो इस तरह की ये नीच हरकतें कर रहे हैं, तो जब मेरे इलाके में ये लोग इतने जरी हो सकते हैं तो हैदराबाद जो मेरा इलाका नहीं है, जहां की जबान से मैं वाकिफ नहीं हूं, जाहिर सी बात है कि मैं वहां आऊं तो ये लोग उससे बड़ा भी एक्शन ले सकते हैं। तो लिहाजा ये मुंबई आए, मैं हैदराबाद नहीं आऊंगा। जैसे ही शेख फसीहुद्दीन ने देखा कि मैंने हैदराबाद आने से मना किया तो आप दिल पर बोझ रखकर इस वीडियो को सुने कि वो किस तरह जरी हो गया और मुझसे मुतालबा कर रहा है कि आप उसी जगह आइए हैदराबाद में जो आपने एक ऑडियो में कहा था कि मैं यहां आकर बात कर सकता हूं, यानी मरकज़े अहले सुन्नत शाहीन नगर हैदराबाद में जो हुजूर शहबाज दक्कन का चमन है। ये उसी की ऑडियो आप सुनिए। बरेलवी मदरसा शाहीन नगर हैदराबाद का, जिसमें बरेलवी मदरसा शाहीन नगर हैदराबाद का जिसमें सूफी कलीम हनफी रज़वी डिबेट करना चाहते थे, वो मदरसे में मैं आ रहा हूं मेरे 9 साथियों के साथ, किताबें और कैमरा स्टैंड वगैरह सबके साथ इंशाअल्लाह। 10 लोग आएंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट में डिबेट होगा 25 नवंबर। अब जब इसने ये कहा कि आप आइए
25-26 तारीख को आप इसके चैनल पे जाकर पूरी वीडियो सुन सकते हैं। उस जगह पर शाहीन नगर में, और आपके साथ मुनाजरा होगा 10-10 लोगों के बीच में, हमारे 10 आपके 10 होंगे। मैंने फौरन टिकट बना ली, और उसके बाद मेरी एक आदत है कि मैं अपने चैनल में छोटी छोटी अपडेट्स देता रहता हूं। फिर जाहिर सी बात है कि जब तुमने सोशल मीडिया पे कहा कि आप शाहीन नगर आइए, आपने ये 16 नवंबर को ऑडियो डाली इस महीने की, और 17-18 को मैंने 17 को टिकट बनाई और मैंने कहा मैं आ रहा हूं। तो मैंने ये खदशा भी जाहिर किया, चूंकि ये सारी कार्रवाई सोशल मीडिया पे हो रही है तो आवाम के आने का डर है, लेकिन मैं किसी भी शख्स को मुनाजरा गाह के करीब आने की इजाजत नहीं देता, और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे मसलक का कोई शख्स भी मरकज अहले सुन्नत के करीब आए। मजीद ये कि शहजादा हुजूर शहबाज दक्कन अल्लामा सोहेल रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने एक स्पेशल ऑडियो इस सिलसिले में जारी किया, और उसे नजरे सामईन किया गया, लोगों तक गोशे सामईन तक भेजा गया कि यहां पर कोई भी सुन्नी ना आए। आप देखें कि मरकज के आसपास न इस वक्त गाड़ियां हैं, न लोग हैं, न चहल पहल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साहब इतना डर गए, दर हकीकत इनको मुनाजरा करना ही नहीं था, ये मुनाजरे से फरार इख्तियार कर रहे थे। इन्होंने जोश में आकर जो चैलेंज मार दिया कि मैं आपको मुशरिक बिदअती कुरान और हदीस से साबित करूंगा, तो इनको अपनी मौत नजर आ गई। इनको दिन में तारे नजर आने लगे कि वाकई जब मुनाजरा गाह में कलीम हनफी पहुंचेंगे और हदीसों कुरान से मुशरिक साबित करने की बात आएगी, मैं तो शिर्क की तारीफ भी नहीं कर सकता। चे जाए कि एक पूरी इतनी बड़ी जमात को जिसका तसलसल रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक है, और जिसका वजूद हक्का इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा, मैं कैसे मुशरिक साबित करूंगा। ये वहाबियों का वो गिरोह है कि जिनके मुंह में जो आता है बकवास कर देते हैं मुसलमानों के हवाले से। बहरहाल मैंने चैलेंज कबूल किया, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा अब इन्होंने रोजाना नए नए पैतरे बदलना शुरू कर दिया। फिर एक बात इन्होंने ये कही कि आप पुलिस परमिशन लाइए फिर मैं आऊंगा। हमारे सदर मोहतरम का इतना कह देना और मेरा ये कहना कि आप आइए, आपका बाल भी बेका नहीं होगा, आपको खरोच तक नहीं आएंगी, कोई आपको टेढ़ी निगाह से देखेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। चूंकि इस मुनाजरे की शोहरत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की मारिफत पहुंच चुकी थी, हमारा इतना कह देना काफी था, लेकिन इसके दिल में जो मुवहिद होने की बात करता है, अल्लाह से डरने की बात करता है, लोगों का खौफ कितना है कि बार बार पुलिस परमिशन और पुलिस प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। तो हमारे सदर साहब ने वो कोशिश भी की, चुनांचे उन्होंने अपने मरकज के लेटर हेड पर पुलिस वालों से परमिशन मांगी कि आप हमें परमिशन दें ताकि हम यहां पुरअमन अंदाज में मुनाजरा कर सकें और फरीक मुखालिफ को जवाब दे सकें, उसके दावे को तोड़ सकें। जब इन्होंने परमिशन मांगी तो पुलिस वाले ने बाकायदा फोन पर कहा कि जब 10-10 लोग बैठ रहे हैं और आप अपने मकान के अंदर बैठ रहे हैं लॉक करके, तो इसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमने उनको बताया कि भाई इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, फिर भी इनकी मक्कारी देखो, नहीं परमिशन लाओ। मैं फसीहुद्दीन से पूछता हूं कि तुम बार बार कुरान और हदीस के ताबेदार होने की बात करते हो, आज से 10, 20, 50 साल पहले जो मुनाजरे हुए हैं, क्या उसमें इसी तरह परमिशन ली गई है? ये तो एहतियाती तदाबीर है जो हम इख्तियार करते हैं। जब तुम्हें अपना मसलक हक साबित करना था, हमारा शिरको कुफ्र वाज़े करना था, हमें कुरान और सुन्नत की रोशन दलीलें दिखानी थी, तो इतने हीले बहाने क्यों? आपको तो आना चाहिए था। ये आपके लिए इतना सजाया गया, किताबों का एहतमाम किया गया, उलमा दूरो दराज से तशरीफ लाए। ये मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब रुद्रूर से तकरीबन 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। ये मुफ्ती मसरूर साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, ये मदरसे के असातिज़ा मौलाना महबूब साहब, मौलाना उस्मान यज़दानी साहब, ये सारे लोगों ने अपना वक्त कुर्बान किया, माल कुर्बान किया, और बहुत बेचारों ने जो है कई रातों की नींद खराब की ये सारे कामों के लिए। कोई हलवा है? तुमने चैलेंज दिया, हमने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया, तुमको आना चाहिए था यहां पर। सामईन सच बताइए, आपको एक भी बंदा यहां करीब दिख रहा है? वादे के मुताबिक जितने लोग कहे गए थे उतने ही लोग बैठे हैं। इनको हकीकत में मुनाजरा नहीं करना था। फिर हमारे सदर साहब ने दोपहर में इनसे बात की कि भाई पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा है, आप एक काम करें कि आप आ जाएं, बात हो जाएगी, या फिर आप कोई जगह बताएं, हम वहां पहुंचेंगे। तो इसने मक्कारी करते हुए
आखिर में हजरत का फोन काटा और कह रहा है कि मैं हजरत की वॉइस क्लिप को वायरल कर दूंगा, ऑडियो को आम करूंगा। और कलीम हनफी की मैंने भी इससे बात की, क्योंकि मैंने इससे ललकारते हुए कहा, बेवकूफ तुमको ये सब बाजीचे अतफाल लगता है, चैलेंज मुनाजरा देना, सामने वाला कबूल करके अपने सारे कामों को बालाए ताक रखकर तुम्हारे मकाम पर, बताए हुए मकाम पर पहुंचता है, और आयन वक्त पर तुम नई नई डिमांडें करने लगते हो। आओ सामने मुनाजरा करो। अगर तुम यहां नहीं आ सकते हो तो बोलो मुझे कहां आना है, मैं आता हूं। और इस बात का सबूत भी मेरे पास है, ये फसीहुद्दीन का नंबर है, और ये आज की डेट में जो उसे मैंने मैसेज किया है, देखिए आप हजरात, ये आज की डेट का मैसेज है जो फसीहुद्दीन को मैंने किया है 26 नवंबर। इसमें मैंने साफ लिखा है फसीहुद्दीन को, अगर मेरी जगह मंजूर नहीं तो बताओ हैदराबाद में कहां आना है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम मैं आता हूं, अगर नहीं आया तो मेरी शिकस्त का ऐलान कर देना। यहां तक लिखा मैंने, लेकिन उसका जवाब ये नहीं आ रहा है कि आपको कहां आना है, वो यही कह रहा है कि आप पुलिस परमिशन लाइए, प्रोटेक्शन लाइए। असल में पुलिस ने पहले ही कह दिया कि जब आप लोग 10-10 लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर गैर मुकल्लिदों ने ही सियासी अफराद का सहारा लेके, शहर के रूसा का सहारा लेकर, बाअसर अफराद का सहारा लेकर इतना ज्यादा पुलिस वालों पर प्रेशर डाला। और सही बात है कि पुलिस वालों की जिम्मा हजारों काम होते हैं, क्या वो यही करते बैठेंगे? उनके जिम्मा शहर का अमन बहाल रखना, बरकरार रखना होता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि दो गिरोह आपस में लड़ें। हालांकि उनको नहीं मालूम है कि ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक इल्मी मुकालमा था, उनके दलील को तो उनके दावे को तोड़ना था और अपने मजहब हक्का की दलील देनी थी। बहरहाल मैंने उसे यहां तक लिखा, फिर उसके आगे भी मैंने लिखा कि तुम्हें मालूम है कि पुलिस परमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम जो है बार बार पुलिस परमिशन का मुतालबा कर रहे हो, बचकानी बातें छोड़ो, बताओ कहां आना है, मैं तने तनहा आता हूं। अब मुझे आप बताइए, गैर मुकल्लिदीन मेरे हवाले से कहते हैं कि जहां ये तकरीर में जाते हैं घंटा 2 घंटा पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं, 1 दिन पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं। इन्होंने मुंबई में कभी चैलेंज मुनाजरा क्यों नहीं दिया? इनको ये बात तब कहनी चाहिए थी जब इनको मेरे हवाले से पूरी तहकीक हो। यूं तो ये कहते कि हम बगैर तहकीक के कोई बात करते नहीं है और आंख मूंद कर किसी की बात मानते नहीं है, किसी का इत्तेबा करते नहीं है। जो बात हम कहते हैं हदीस और कुरान की रोशनी में कहते हैं। बेवकूफों, मेरे चैनल के ऊपर हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, तुम्हें पहले पूरा सुन लेना चाहिए। मैंने 50 मरतबा मुंबई की सरजमीन पर गैर मुकल्लिदों से कहा है कि तुम आओ और मुझसे मुनाजरा करो, जो तुम्हारे हमारे बीच मुख्तलफ फी मसाइल है, मुतनाज़ा फी मसाइल है या अकायद के मसाइल हैं, उस पर आकर बात करो। आज तक किसी गैर मुकल्लिद ने यह हिम्मत नहीं की कि वो मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में आए और मुझसे रूबरू बैठकर इन मसाइल में बात करें। आप इस शख्स की हैसियत देखें कि जमीयत अहले हदीस, असल में फिरका अहले हदीस की जो पैदाइश है वो अंग्रेजी दौर में हुई, और जब ये रजिस्टर्ड हुई थी तो जमीयत अहले हदीस के नाम ही से हुई थी। इसके बानियान में मौलवी सैयद नजीर, मौलवी अब्दुल हक बनारसी और मौलाना हुसैन बटालवी है। तो ये जमीयत अहले हदीस, ये ऑथेंटिक अहले हदीस जमात है। उस जमीयत के अफराद ने इसे अपना नुमाइंदा मानने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पे ये पर्चा भी गर्दिश कर रहा है, हमारे चैनलों पे भी पड़ा हुआ है, आप इसके मजमून को पढ़ सकते हैं कि ये साफ कह रहे हैं कि हमने किसी को भी बहसो मुबाहसा मुजादला वो मुनाजरा की इजाजत नहीं दी है। अब चूंकि अहले हदीस ये कहते हैं कि आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ने 4 मजाहिब बना लिए, इस्लाम के 4 टुकड़े किए हैं, आप आओ कुरान और सुन्नत का इत्तेबा करके एक दीन के पैरोकार बनो। खुदा की कसम, ये आइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ये 4 अलग अलग मजाहिब नहीं है, इनकी जड़ एक है, ये उस जड़ की 4 शाखें हैं। और जिन्होंने ये कहकर लोगों को अहले हदीस बनाना शुरू किया कि हनफी और शाफई मालिकी हंबली बनने की सूरत में तुम फिरका बनोगे और अहले हदीस बनने की सूरत में तुम मिल्लत वाहिदा बनोगे, वो खुद कई टुकड़ों में बढ़ गए। अब तक तो मेरे इल्म में इनके 50 फिरके हैं, 50 फिरके हैं। तो देखिए अब दूसरा लेटर जो इसने, जब हमने कहा कि भाई तुम अपनी ताईद लेकर आओ, तो ताईदी लेटर लेकर ये आ रहा है मजलिस ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल। एक तो है ऑथेंटिक पुरानी जमीयत अहले हदीस, अब दूसरी इसने बनाई है
ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस, जी हां, और उसमें ये इसी का कोई शख्स है, वो कह रहा है कि हम इसकी हिमायत भी करते हैं, इसे इजाजत भी देते हैं कि ये मुनाजरे में जाए और बरेलवी मुनाजिर से मुनाजरा करे। सारी बातें अपनी जगह है फसीहुद्दीन साहब, जो आप घूम घूम कर फितना व फसाद फैलाते हैं, हदीस व कुरान के नाम पर धांधली करते हैं और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हो। जब तुम्हारा इतना बड़ा दावा है कि बरेलवी मुशरिक है, उनके आमाल, अफआल, रसूमात और फौज शुदा बुजुर्गों से इस्तिआनत करना वगैरह वगैरह जो कुछ तुमने अपनी पर्ची के अंदर शराइत में लिखा है, अहमकाना बातें, तो तुम्हारा काम तो ये था कि तुम आते सिर्फ अल्लाह का खौफ करते। क्या साहबा कराम ने दीन के लिए कुर्बानियां नहीं दी? बाल बच्चों को नहीं छोड़ा, वतन अजीज को नहीं छोड़ा, खेत खलियान नहीं छोड़ा, हत्ता के राह खुदा में अपनी गर्दनें कटवा दी। तुम साहबा का इत्तिबा की बात करते हो, तुमसे इतना न हुआ कि अपने ही शहर में हमारी दी हुई गाड़ी से आते और आने के बाद बैठकर मुनाजरा करते। 1-1.5 माह से तुम फितना फैलाए हुए हो सोशल मीडिया पे। अजीजान मोहतरम, खूब अच्छे से याद रखिए कि फसीहुद्दीन को शुरू दिन से मुनाजरा करना ही नहीं था। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। असल में हुआ यूं कि जब मैंने 17 को कहा मैं आ रहा हूं, 18 को कौन गैर मुकल्लिद है, तो जो जमीयत के 2-4-10 अफराद होंगे अहले हदीस जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उन्होंने इसको बार बार फोन किया कि शेख आपका काम है कि कलीम हनफी को जवाब दें। तो उस वक्त इसने पुलिस परमिशन का बहाना करके चुप्पी साध ली और 20 तारीख को बड़े तमतराक से सामने आया और चैलेंज मुनाजरा ठोक दिया। जैसा इसका हाल ऐसा है कि कुएं के अंदर एक बच्चा गिर गया। अब सारे लोग कुएं के अंदर देख रहे हैं कि भाई बच्चे को बचाने की क्या सूरत है, बच्चे को बचाने की क्या सूरत है। सूरत पर गौर किया जा रहा है। इसी बीच में एक लहीम शहीम पहलवान साहब अंदर कूदते हैं और बच्चे को पकड़ के बाहर निकलते हैं। अब लोग शाबाशी दे रहे हैं, वाह साहब बड़ा उम्दा काम किया आपने, बड़ा बहादुरी का काम किया आपने। पहलवान साहब कहते हैं वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे अंदर ढकेला किसने, मुझे अंदर गिराया किसने? यानी वो खुद से नहीं गया था। यही हाल फसीहुद्दीन का है कि उस बेचारे को जो बिल्कुल नाअहल है, इस्लामी उलूम से नावाकिफ है, बेटे जबान की नौको पलक मखारिज पर सही करने का नाम तुमने इल्म समझा है। अभी तुम इल्म का जो समंदर है उसके साहिल पर सीपियां चुन रहे हो। तुम्हारी ये हैसियत भी नहीं है कि तुम अंदर जाकर गोता लगाकर हीरे मोती निकाल सको। ये सिर्फ मुकल्लिदीन का, अहनाफ का और ये जो अइम्मा मुज्तहिदीन के पैरोकार है उनका काम है। खुदा की कसम अहले हदीस फसीहुद्दीन मर जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आ सकता कि वो कलीम हनफी के सामने बैठकर मुझसे मुनाजरा कर ले। मैं तेरे शहर में दिए हुए वक्त पर 26 नवंबर को पहुंच गया जी। मुनाजरा गाह सजी हुई है। सदर साहब किबला ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठे हुए, बहुत मसरूफ आदमी है। अपने सारे कामों को इन्होंने छोड़ दिया कि ये फर्ज आजम जो है पहले अदा किया जाए। जी हां, उलमाए किराम दूरो दराज से तशरीफ लाए तो आ जाना चाहिए था। क्या तुम्हारी मालूमात है, कितना हदीस व कुरान के अंदर तुम्हें महारत है, आज हमें भी पता चल जाता। लेकिन तुम नहीं आए क्योंकि आज तुम ये सोचे कि एक मर्तबा बहाना करके ना जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा ये जश्न फतह मना लेंगे, लेकिन जाकर अगर हार गया तो फिर अब क्या करूंगा मैं, इसके बाद तो फिर कोई जाए पना नहीं है। तो बहरहाल इसने बहुत दूर की सोचा और बहुत जीरक बंदा है ये, बहुत दूर की सोचता है, बहुत सोच समझ कर ये मुनाजरे में नहीं आया कि अगर मैं आ गया तो जिल्लत व लानत का तौक मेरे गले में पड़ेगा और मरते ताजीस्त की रुसवाई रहेगी कि फिर मुझे मुंह उठाने के मैं लायक नहीं रहूंगा। बहरहाल फसीहुद्दीन, तुमने बुलाया, मैं आया, तुम नहीं आए, यही तुम्हारी हार है। इसके बाद तुम ऑडियो बाजी करो, वीडियो बाजी करो, किसी मकतब में जाकर कुतुब खाने में किताबों पे निशान लगा दिए गए हैं। क्या हैदराबाद में किताबें बेचने की दुकानें नहीं है? कुतुब खाने में चले गए, किताबें दिखा दी और 2-4 वो फार्मी मुर्गी को दिखा दिया और लाल रुमाल पहने हुए, देखो ये है हमारे उलमा। तो जो उलमा वहां बैठे हैं, अगर कुरान और सुन्नत का दर्द होता, दीन का हब्बा बराबर दर्द होता तो आज सामने आकर मुनाजरा करते। सामईन मोहतरम, इनका पुलिस परमिशन बार बार मांगना और बार बार पुलिस वालों को दूसरे जराए से परमिशन न देने के लिए उकसाना, ये दोनों इनकी चालें हैं। जी हां, अब इनको मालूम है परमिशन मिलेगा नहीं, फिर इसी को बहाना करके मैं कहूंगा भाई जब परमिशन मिला नहीं तो मैं जाऊं क्यों।
تو इससे पूछिए क्या मुनाजरा करने के लिए पुलिस परमिशन जरूरी है? जो तूने 4 अदिल्ला बताए हैं उनमें से कोई एक से साबित होता है कि पुलिस परमिशन लिया जाए? वैसे तो ये इतने बड़े मरदूद है, दावा करते हैं सिर्फ और सिर्फ हदीसों कुरान पे अमल करने का, लेकिन जब इन्हें अपनी मौत नजर आती है तो इजमा की हुज्जियत भी इनको कुरान में नजर आती है और कयास की हुज्जियत भी इनको कुरान में नजर आती है। जी हाँ, और फिर खुद ये मुज्तहिद मुतलक भी बन जाते हैं। ये नफ्स परस्त लोग हैं, खबीस नफ्स के लोग हैं। खुदा की कसम ये दीन पर अमल नहीं करते, ये अपने खबीस नफ्स की पैरवी करते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ वक्त मुकर्ररा पर पहुंचे, वो नहीं आया, इसी में उसकी हार है, उसकी शिकस्त है। और मैं फिर हिंदुस्तान भर, बर्रे सगीर और दुनिया भर के गैर मुकल्लिदीन को इस तरह का चैलेंज देता हूं कि तुम्हारा तो कोई दीन धर्म है नहीं, कोई ईमान है नहीं। तुम हमें बुलाओ, हम खर्च करके पहुंचे, फिर तुम गायब हो जाओ शियों के बारे में ईमान की तरह। तो बेहतर यह है कि आप जिसे भी मुनाजरा करना हो, मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में पहले इत्तला करे कि मैं इस टॉपिक पर मुनाजरा करने के लिए आ रहा हूं। आ सकता है, उसका इस्तकबाल है, उसका वेलकम है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां तमाम उलूम व फनून की जरूरी किताबें हैं, वही मुनाजरा होगा। अब किसी की दावत पर मैं उठे छुटे पहुंचने वाला हूं नहीं। आपने देखा लोग बुलाते हैं, खुद गायब होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत का इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चाहूंगा इस सिलसिले में चंद बातें हमारे सदर साहब या दीगर कोई आलिम साहब इरशाद फरमाए। मुफ्ती मसरूर साहब किबला से भी आप चंद बातें समाअत फरमा लें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात ने सदर इजलास और मुनाज़िर अहले सुन्नत और मुईन मुनाज़िर से बाज़ाब्ता जितनी भी ज़रूरी बातें थी समाअत फरमा ली हैं। मैं आखिर में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सूफ़ी मोहम्मद कलीम रज़वी साहब क़िबला मद्दज़ल्लाहु अली के हुक्म पर चंद कलिमात गोशगुजार करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अहले हदीस जिनको हम बाज़ाब्ता गैर मुक़ल्लिद के नाम से याद करते हैं और हकीकत में ये लोग गैर मुक़ल्लिद ही हैं, इन हज़रात का ये शेवा है कि अवाम में इंतशार पैदा करना, मुतालबात करना, चैलेंजेस करना और उसके बाद जब मौका आए तो राह फरार इख्तियार करना। ये इनकी जो है विरासत है। और मौजूदा दौर में और पेश नज़र जो एक शख्स है शेख फसीहुद्दीन हैदराबादी के नाम से, उसने भी अपनी रूहानी आबा व अजदाद की रविश पर चलते हुए वही कारनामा अंजाम दिया है और मुख्तलिफ ज़राए को सहारा बनाते हुए राह फरार इख्तियार की है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात बतौर ख़ास जो मुतारफ़ है इस ज़माने में मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत के नाम से, हम सब हमेशा के लिए तमाम बातिल जमातों से और बतौर ख़ास गैर मुक़ल्लिदों से डिबेट या मुनाजरा या मुकालमा या किसी भी अक़ीदे या किसी भी मसले पर बहस व मुबाहिसे के लिए हमेशा हमारे अकाबिर भी तैयार रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी तैयार रहते हैं। और आइंदा में इंशाअल्लाह ऐसी ज़रूरत पेश आएंगी तो हम लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मुखालिफ मुनाज़िर को कम से कम इतना एहसास रहना चाहिए कि जो है वादा करने के बाद वादा खिलाफी करने को हदीस पाक में मुनाफिक की अलामत करार दिया गया है। और ज़ाहिर सी बात है आमाल का निफाक पैदा होता है और उससे पहले अकीदे का निफाक मौजूद रहता है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब फरमाए। और जितने भी हज़रात यहाँ मौजूद हैं, हम तमाम की हाज़िरी इस बात का बय्यन सबूत है कि उलमाए हक़ अहले सुन्नत वल जमात कभी भी मुनाज़रे से फरार इख्तियार नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब हक़्क़ा को वो इस्तिक़ामत और दलाइल की वो क़ुव्वत और बाज़ाब्ता सदियों के तसलसल और तआम्मुल से वो इस्तिहकाम अता फरमाया है कि रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है। अल्लाह ताला हम सबको इसी मज़हब हक़्क़ा पर क़ाइम दाइम फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, जैसा कि आपने अभी मुफ्ती साहब किबला दामत बरकातुहुम की मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगू समात फरमाई,
सदर साहब किबला दामत बरकातुहुम ने अभी मुझे बताया कि मुनाजरा तो आज नहीं हो पाया, अगर मुनाजरा हो जाता तो बहुत से सोते हुओं की आंखें खुल जाती। लेकिन कल इसी शहर हैदराबाद में, उसी जगह मुशीराबाद में, जहां मैंने 18 को चैलेंज दिया था कि आओ जिसमें दम हो सामने खड़े होकर मुझसे सवाल जवाब करो, उसी जगह अंजुमन फंक्शन हॉल मुशीराबाद में कल रद्दे गैर मुकल्लिदियत पर इस फकीर की तकरीर होगी और इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मैं इनके परखचे उड़ाऊंगा। फसीहुद्दीन साहब सुन लीजिए, अभी आप, मैं कल तक हूं इस शहर में और मैंने कहा था कि मैं वापसी की टिकट नहीं बना रहा हूं। पता नहीं मुनाजरे में कितने दिन लग जाए, मुझे क्या मालूम, मुझे तो सामना ही नहीं होगा इनका। बहरहाल कल मेरी तकरीर है, तकरीर में तारीख अहले हदीस और इनके गुमराह कुल अकाइद अल्लाह सुब्हानहू तआला के हवाले से, रसूल करीम अलैहिस्सलाम, हजरात साहबे किराम के हवाले से, औलियाए उम्मत के हवाले से, और ये फिरका कब पैदा हुआ, अंग्रेजों से किस तरह इनकी फंडिंग होती रही, वो सारी चीजें इंशाअल्लाह मैं कल की तकरीर में बताऊंगा। एडवांस में बात मैं बता रहा हूं, कल आप तकरीर में जितने हैदराबाद के में रहने वाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं या कुर्बो जवार में हैं, आप जरूर उस प्रोग्राम में बाद नमाज इशा पहुंचे। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।